Good morning, students. We were doing chapter 4 of Indian politics, beta, and I told you there are some changes, and some part of chapter 5 of world politics is shifted to Indian politics. So we are doing that part, है ना, India's relation with its neighboring countries. So beta, today also we are continuing topic with the world politics. फ्रॉम पेजेस मैंने आपको पहले बताया था, पेजेस 74, 75, 76 एंड 77. ओके, सो वी आर डूइंग these pages from world politics. Today's topic is India's relation with its neighboring country श्रीलंका. श्रीलंका आपके लिए नया नहीं है बेटा, है ना. श्रीलंका बेटा, इन श्रीलंका ना there is majority of Sinhala community. In 1948 Sri Lanka also became independent from colonial rule, and there was majority of Sinhalas in Sri Lanka, but many Indian Tamils were also living in Sri Lankan territory, because जो ये वाले जो Indian Tamil से बेटा उनको ब्रिटिशर्स ही तमिलनाडु मद्रास वाले रीजन से श्रीलंका में प्लांटेशंस में वर्क करने के लिए ले गए. सो दोज तमिल्स वर नाउ settled permanently in Sri Lanka. Their forefathers came in Sri Lanka na, they were brought by Britishers, so now they are completely settled down in Sri Lanka only, and they were now natives of Sri Lanka. But the Sinhala community don't want to give any rights to these Tamil speaking people. ठीक है, they have declared their majority, they have adopted majoritarianism. In that they have announced that Sinhala is the main language of the country, Buddhism is the state religion, all the government jobs or all the seats in the educational institutions were reserved for the Sinhalas. Tamils were not given any right. So यहीं से क्या हुआ, तमिल्स और श्रीलंका के सिंहालास के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया. और फाइनली क्या हुआ, when these Tamils were exploited so much by the Sinhala community, then they have formed a terrorist group named LTTE. ठीक है, and this LTTE has demanded separate state for Tamils, and in 1983 onwards this militant organization has started fighting with Sri Lankan government, Sri Lankan army. ओके बेटा, उनके बीच में डायरेक्ट क्या होती रहती है, फाइट होती रहती है 1983 ऑनवर्ड्स. ठीक है, सो दिस LTT डिमांडेड फॉर द सेपरेट स्टेट फॉर द तमिल इलाम. ओके, उसके बाद क्या हुआ, अब जो इंडिया में जो तमिल्स थे, दे वर डिमांडिंग, दे वर सेइंग टू इंडियन गवर्नमेंट टू हेल्प द तमिल्स इन श्रीलंका, बिकॉज दे हैव ओरिजिन इन इंडिया ना. सो वो डिमांड कर रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट को श्रीलंकन तमिल्स के लिए, जो कि इंडिया से गए हुए हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उन्हें राइट्स दिलाने चाहिए. सो ऑन द डिमांड ऑफ पीपल, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ फर्स्ट टाइम in 1987 the government of India for the first time got directly involved in the Sri Lankan Tamil question. Okay, India signed an accord with Sri Lanka and sent troops to stabilize relations between Sri Lankan government and the Tamils. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्ड क्या हुआ, 1987 में एक पीस कीपिंग फोर्स हम कह सकते हैं, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वॉज सेंट टू श्रीलंका टू नॉर्मलाइज रिलेशन बिटवीन सिंहालाज एंड तमिल्स. ओके, बट क्या हुआ, जो ये पीस कीपिंग फोर्स थी, धीरे धीरे जो LTT के जो मेंबर्स थे बेटा, वो इस पीस कीपिंग फोर्स से ही लड़ने लग गए. और व्हाट हैज़ हैपन, जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी, दे ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग दैट इंडिया इज़ इंटरफेयरिंग इन देयर इंटरनल अफेयर्स, है ना. सो आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड सेइंग इट इज़ नॉट फेयर, है ना, इंडिया इज़ इंटरफेयरिंग इन श्रीलंकाज इंटरनल अफेयर्स. सो फाइनली क्या हुआ, in 1989 India has called back this Indian peacekeeping force from Sri Lanka. ठीक है, और उसके बाद इंडिया ने कभी भी इस मैटर में कुछ इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की. तो ये तो फर्स्ट चीज़ है बेटा, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के बीच में बेटा. ओके, उसके बाद देखो वैसे क्या है, फिर भी हमारे श्रीलंका के साथ थोड़े रिलेशंस क्या हैं, ठीक है, बिकॉज इंडिया हैज़ साइन कॉपरेशन एरिया कर रहे हैं, वो तो एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट तमिल इशू. इंडिया साइंड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद श्रीलंका. Okay, which strengthen relation between these two countries. India's help in post tsunami in 2004 tsunami came in Sri Lanka also in
Tamil Nadu also, no? So it has affected the life of the people in India also and in Sri Lanka also. So at that time, Indian government helped Sri Lankan government to overcome from these problems, to face these problems. Okay, so since then we two countries are having good relations with each other. Okay, so now next country is Bhutan. Bhutan is a very small neighbor country, है ना. So India enjoy a very special relationship with Bhutan too, and does not have any major conflict with Bhutani government. सबसे पहले हम कर रहे हैं एरियाज ऑफ कॉपरेशन. अब देखो इंडिया में क्या था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलिटेंट्स जो हैं, दोज हु वर यूजिंग गुरिल्ला वार टेक्निक्स, दे वर कमिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड अटैकिंग, एंड देन कहाँ छुप जाते थे, भूटान में जाकर छुप जाते थे. तो इसीलिए भूटानी गवर्नमेंट ने क्या किया विद द हेल्प ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने उनको फाइंड किया और उनको अरेस्ट करवाने में इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प की. ओके बेटा, सो इसीलिए जो इस टाइप के जो मिलिटेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने में इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी हेल्प मिली. दूसरा क्या है, इंडिया इज़ बिग कंट्री रादर दैन भूटान. सो इंडिया इज़ इन्वॉल्व इन बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स इन भूटान एंड रिमेन्स द हिमालय किंगडम्स बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड. भूटान को जब भी कोई भी हेल्प की ज़रूरत होती है किसी प्लान को सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो कौन हेल्प करता है भूटान की, इंडिया. सो इंडिया एंड भूटान आर हैविंग गुड रिलेशंस. ओके, देन नेक्स्ट कंट्री इज़ आर island country, neighbor island country, that is in the west south of India. Can you guess the name? Maldives, है ना बेटा. So next neighboring island country is Maldives, which is in the southwest of India. ठीक है. So बेटा India's ties with Maldives remain warm and cordial. इनके साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं. इन नवंबर 1988 when some Tamil missionaries from Sri Lanka attacked on Maldives, the Indian Air Force and Navy reacted quickly to the Maldives request to help to stop the invasion. So जब श्रीलंकन आर्मी ने अटैक किया तो इंडिया ने फटाफट से क्या किया, मालदीव्स की हेल्प की. ओके, उसके अलावा इंडिया बेटा इस स्मॉल आइलैंड कंट्री की टाइम टू टाइम हेल्प करता रहता है इन द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़म, इन द डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज. ऑलवेज इंडिया इज़ हेल्पिंग देम. ओके, सो यानी कि हमारे मोस्ट ऑफ द जितनी भी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है बेटा, ऑलवेज इंडिया इज़ ट्राइंग टू मेक गुड रिलेशंस विद देम, वेदर इट इज़ पाकिस्तान. जब हम पाकिस्तान के साथ ही अच्छे रिलेशन बना के रखने की कोशिश करते हैं तो और हमारे जो जितने भी नेबर्स हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, है ना, इन सब के साथ भी हम क्या करते हैं, अपने अच्छे रिलेशन बनाए रखने की कोशिश करते हैं. बट जो ये स्मॉलर कंट्रीज़ हैं, नेपाल का भी हमने पढ़ा है ना, कभी कभी भूटान भी कह देता है, मालदीव्स भी कह देता है कि इंडिया इज़ शोइंग इट्स डोमिनेंट ओवर देम, डोमिनेंस, है ना, क्योंकि वो सोचते हैं कि इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, पावरफुल कंट्री, सो इंडिया इज़ ट्राइंग टू डोमिनेट देम. ओके, सो ये बात उनके मन में कब आ जाती है. वैसे बेटा जो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें भी आपस में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं. सम एग्जांपल्स आर गिवन. देखिए, नेपाल एंड भूटान एज वेल एज बांग्लादेश एंड म्यांमार हैव हैड डिसएग्रीमेंट्स इन द पास्ट ओवर द माइग्रेशन ऑफ ethnic Nepalis into Bhutan and the Rohingyas into Myanmar respectively. Bangladesh and Nepal have had some differences over the future of Himalayan river waters. उनमें भी रिवर वाटर को लेकर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं आपस में. द मेजर कन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस दो आर बिटवीन इंडिया एंड अदर्स, पार्टली बिकॉज ऑफ जोग्राफी ऑफ द रीजन इन विच इंडिया इज़ लोकेटेड सेंट्रली and is therefore the only country that borders the others. So hence we can say कि India is a good neighbor country. It is always trying to make good relations with its neighboring country. Goodbye.